Um, Dear students, today we are going to start a mathematics topic of class 10th, that is circles. First of all, we will find what is circle and tangent. After that, we will through the first theorem of this lesson, that is radius tangent theorem. So firstly, we define circle. As you know, dear students, a circle is the locus of a point which moves in a plane so that it remains at a constant distance from a fixed point in the plane. Means if we take a fixed point in a plane and move a particle or move a point in such a way that it remains constant from this fixed point. Once again I will repeat, if we take a fixed point on a plane and rotate a point or a particle in such a way so that it remains constant from this fixed point, or it remains equidistant from this fixed point, then the locus of the particle or locus of the point is simply, their students, known as circle. And what's the locus? Locus is actually the path traveled by a particle under a particular condition. Here the particle or the point travels under a condition. Here this condition is that it should remain constant from this fixed point, or in simple words we can define it, dear student, it is a simple closed curve. It is a simple closed curve. As you know, line is made up of pointers. Similarly, curve is made up of pointers, uh, and this is also a curve. It is also made up of, dear students, infinite number of pointers, or we can say that it is the collection of points. So in other words, we can define it as it is the collection of all those pointers. It is the collection of all those pointers which are at a constant distance from this fixed point. And the fixed point here is called the center of the circle, and the constant distance is called radius of the circle. A center with a circle, sorry, with center O and radius R is denoted by this form, and is denoted by this notation. Now, tangent. A tangent is a line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle. Means tangent is a line that touches, that not crossing, that only touches a circle exactly in one point is known as, dear students, tangent. Means a line which only touches a circle is known as, dear students, tangent to the circle. And the point which is common to both, or we can say the point at which tangent touches to the circle, or the point which is common to both tangent and circle is their students simply known as point of contact. Now theorem की तरफ. Now we will prove the first theorem of this lesson, that is radius tangent theorem. The statement of the theorem is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Once again I will repeat, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Means अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, लेकिन कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. मीन्स अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, तो दैट कहाँ? लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. तो यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है, ये जो एंगल होगा फिर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मीन द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ये हमें प्रूव करना है, डियर स्टूडेंट्स. ये 90 होना चाहिए. तो गिवन हमारे पास जो होगा, a circle with center O and radius R. इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि टेंजेंट लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रा की है. स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इज ड्रॉन
टेंजेंट टू द सर्कल, कहाँ पे, एट द पॉइंट P पे हमने ये ड्रा किया। टू प्रूव डियर स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है OP हमें दिखाना है इट इज परपेंडिकुलर ऑन XY। OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए पॉइंट Q ऑन दिस टेंजेंट लाइन, वी विल टेक ए पॉइंट Q ऑन दिस टेंजेंट लाइन अदर देन P, यानी कि हम इस टेंजेंट लाइन पे एक पॉइंट Q लेंगे लेकिन P पे नहीं, P के बाएं दाएं तरफ ले सकते हैं लेकिन P पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट Q लिया है। इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे OQ को, और ये इंटरसेक्ट कट करेगा इस सर्कल को, इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम रखेंगे A। तो कॉन्स्ट्रक्शन में हमने डियर स्टूडेंट्स किया है, विल टेक ए पॉइंट से इसका नाम Q है अदर देन P ऑन टेंजेंट XY। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे OQ। सपोज OQ meets the circle in A। Now we'll and proof। Now dear students, इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हमारा एक लाइन है और यहाँ पे एक हम पॉइंट लेंगे और बहुत सारे हम लाइन सेगमेंट्स ड्रा करेंगे उस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स ड्रा किए हैं और ये भी एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की है। अब यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमने इस पॉइंट से लेकर जितने भी लाइन्स इस लाइन पे ड्रा किए हैं, सबसे जो ये लाइन लो, ये लाइन लो, ये लाइन लो या ये लाइन लो, 1 2 3 या 4 5 6 जितने भी लाइन्स हैं, इसमें ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यानी कि लाइन इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और मीन्स, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, OP हमें दिखाना है डियर स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है ना XY पे। तो मीन्स इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी बाकी डिस्टेंसेस है, इस डिस्टेंसेस के रेड में मैंने जो लिखे हैं वो से भी इससे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा लेंथ है एज कम्पेयर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे कम लेंथ इस वाले डिस्टेंस की होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे एंगल 90 होगा। तो टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर, तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हमने दिखाया कि OP अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो जरूर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। नाउ वो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे, वी नो दैट among all line segments, among all line segment joining the point, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा joining the point O, यहाँ पे आप ये O पॉइंट है, टू ए पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट लेंगे ऑन टेंजेंट लाइन पे ऑन XY पे दे और परपेंडिकुलर होगा, द परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट टू XY। सबसे पहले सबसे जो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर ही होगा। नाउ OQ, अब यहाँ से फिगर में देखेंगे, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट OQ विल बी इक्वल टू OA प्लस AQ, बिकॉज OQ ये वाली लाइन है, OQ ये वाली लाइन है। एंड डियर स्टूडेंट्स से हमने यहाँ पे देखा लिखा है OQ इज इक्वल टू OA प्लस OQ, मीन्स OQ ये वाली लाइन है तो इसको हम लिख सकते हैं OA प्लस AQ। व्हेन पार्ट्स आर एडिड द QS होल, यानी कि OA प्लस OQ, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा OQ। Therefore we can write it OQ is greater than OA। Can you write it? OQ बिल्कुल
आसान सा है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ ए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा लेंथ होगी एज कम्पेयर टू ओ ए, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ ए। एक्चुअली इट इज़ द होल एंड इट इज़ द पार्ट, and you have already studied, dear students, uh, it is whole and this is the part, and always whole is always greater than part, whole is always greater than part। अब यहाँ पे देखेंगे ओ क्यू होल है और ओ ए इसका हिस्सा है, तो that is why ओ क्यू is always greater than ओ ए, which implies we can write it ओ क्यू is greater than ओ ए। ओ ए की जगह हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ओ पी, क्योंकि दोनों किसके रेडी ऑफ द सेम सर्कल। ओ ए की जगह हम लिख सकते हैं ओ पी, ओ ए की जगह हम लिख सकते हैं ओ पी, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, दीज आर द रेडिये ऑफ सेम सर्कल। ओ ए एंड ओ पी सेम है क्योंकि दोनों रेडिये ऑफ सेम सर्कल है। और we can write OP is less than OQ, जस्ट इनइक्वालिटी चेंज होती है, 2 is ग्रेटर देन 1, बट जब इंटरचेंज होंगे 1 is less than 2, यहीं पे हुआ है, इनइक्वालिटी चेंज हुई है, मीन्स OP is, अब यहाँ पे देखेंगे OP is less than OQ, OP is less than OQ, इसका ये मतलब है OP क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट इज स्मॉल, OP is shortest distance, which implies OP is the shortest distance from, कहाँ से, from point O to the tangent x y। और ये भी मैंने कहा था डियर स्टूडेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हैंस ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो इस तरह से ये फिर हैंस प्रूव, ये जो थ्योरम है ये प्रूव हुई है। और यहाँ पे आप बहुत सारे इसी तरीके से, अगर मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, यहाँ पे हम और एक पॉइंट जी वगैरह ले सकते हैं। फॉर यूजिंग दिस सेम लॉजिक वी कैन प्रूव डैट ओ पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस तरह से हमने यहाँ पे ओ क्यू से कंपैरिजन इसको किया है, तो यहाँ पे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं ओ पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है।